السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے کہ اے وہ ذات جو تمام مخلوق اور کائنات کا خالق ہے، اپنے رسول اور ان کی دختر سیدہ طاہرہ صدیقہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ آپ کو بتائیں، صوبہ سندھ کے شہر گھوٹکی میں رینجرز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 رینجرز اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ سکھر سے گھوٹکی آنے والی بم ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑی الٹنے سے ایک اہلکار چل بسا۔ ملک دشمنوں کا سندھ کے امن پر وار، قانون کے رکھوالے نشانے پر 2 رینجرز اہلکار دھرتی ماں پر قربان۔ گھوٹکی ریلوے اسٹیشن کے قریب رینجرز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا۔ پولیس کے مطابق رینجرز اہلکار گھوٹا مارکیٹ کے قریب گوشت خرید رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے سے 2 رینجرز اہلکار ظہور اور فیاض شہید ہو گئے، جبکہ ایک ریلوے کا سابق ملازم غلام مصطفیٰ بھی جاں بحق ہوا ہے۔ دھماکے میں رینجرز اہلکار امتیاز اور شہری شمن کھوسو زخمی بھی ہوئے، جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب سکھر سے گھوٹکی آنے والی بم ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ تیز رفتاری کے باعث گاڑی کلابازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا، جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ دی جائے۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق ہو چکا۔ 60 سے زائد ایریاز مکمل طور پر سیل کر دیے گئے۔ لوگوں کو اپنے گھروں تک محدود رہنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے جہاں زیب علی کی رپورٹ۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بڑھتے کورونا کے باعث شہر کی 3 تحصیلوں 60 سے زائد ایریاز میں 14 دن کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق ہو گیا ہے۔ کمشنر حیدرآباد کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر میں کورونا کے پیش نظر سخت لاک ڈاؤن تحصیل سٹی کی مبارک کالونی، کلوڑا کالونی، تحصیل لطیف آباد، میر حسین آباد کالونی، جی آر کالونی اور یونٹ نمبر 6، 4 لطیف آباد کے علاقے شامل ہیں، جبکہ قاسم آباد کی تحصیل میں میمن سوسائٹی، گلستان سجاد، ریلوے کالونی و دیگر علاقے شامل ہیں، جہاں پر پولیس کی جانب سے گلیوں سڑکوں کو خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ کہ اگر ایسا کیا ہے تو گورنمنٹ کی اچھی اپنی ایک حکمت عملی ہوگی اور اس کے تحت کیا جا رہا ہے، تو یہ عوام اور ہمارے حق کے اندر بہتر ہے۔ اس لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ گورنمنٹ کے اس اقدام کی جو ہے بھرپور مدد وہ کرتے ہیں، ہم تائید کرتے ہیں۔ جبکہ 3 تحصیلوں میں لاک ڈاؤن کے دوران بغیر ماسک کے اندر اور باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ علاقے میں آنے اور جانے والوں کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے، جبکہ گھر کے صرف ایک فرد کو شناختی کارڈ دکھا کر خریداری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان علاقوں میں دودھ، سبزی، میڈیکل اسٹور، اشیاء خوردونوش کی دکانوں کے علاوہ مکمل بازاریں، مارکیٹیں و دیگر شاپ بند رہیں گی۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز حیدرآباد۔ کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں 4000 دکانیں 15 روز کے لیے مکمل بند کر دی گئیں۔ نوید اقبال کی رپورٹ۔ ڈسکا میں کرونا وبا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ڈسکا میں 4000 دکانیں، 3000 گھر، 5 بازاروں سمیت ان بازاروں سے ملحقہ مارکیٹیں ہاٹ سپاٹ ایریا قرار دے کر سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ بند کیے جانے والے علاقوں میں مچھلی بازار، ٹھٹھیارا بازار، صوبیدار بازار، صرافہ بازار اور تمام ملحقہ مارکیٹیں بشمول سمریال روڈ شامل ہیں۔ بند کیے جانے والے بازاروں اور مارکیٹوں کو کناتوں اور مختلف رکاوٹیں لگا کر بند کیا گیا ہے، جنہیں 15 روز کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر آصف حسین کے مطابق آنے والے 2 ماہ میں دیہاتوں سمیت تمام علاقوں میں مرحلہ وار اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کیمرامین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا۔ کون سا کورونا، کون سے ایس او پیز؟ ٹنڈو علیار کے شہریوں نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دیں۔ احساس کفالت سینٹر کے باہر امدادی رقم کے حصول کے لیے شہریوں کا رش لگ گیا۔ امتیاز حسین کی رپورٹ۔ ٹنڈولیار میں لاک ڈاؤن کے دوسرے روز بھی عوام گھروں تک محدود نہ رہ سکی۔ ٹنڈولیار کی مین شاہراہوں، گلیوں سمیت احساس کفالت سینٹر میں عوام کا ہجوم نظر آنے لگا۔ ٹنڈولیار پولیس لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے اور ٹنڈولیار کے شہری حکومتی ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی کرنے میں مصروف ہے۔ عوام کی جانب سے ماسک، سینیٹائزر اور ہینڈ گلوز کے استعمال نہ کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنے کے باعث دن بدن ٹنڈولیار میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹنڈولیار میں اب تک ٹوٹل کرونا کیسز کی تعداد 77 ہو چکی ہے، جن میں سے 28 افراد نے
कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब हो गए हैं, जबकि 49 अफराद जेर इलाज हैं। जबकि दिहाड़ीदार मजदूर तबका बेरोजगार होने के बायस एक बार फिर फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि मुसलसल लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार तबके को जिले हुकूमत की जानिब से इमदाद की फराहमी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। देखिए, लॉकडाउन का मतलब ये है कि एहतियाती तदाबीर, लेकिन एहतियात के अंदर हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो कि मजबूर है, मुफलिस है, गरीब लोग हैं। अब वो लोग फाका कशी पे जो है ना मजबूर है और हम लोग जो लॉकडाउन के लिए कर रहे हैं। लॉकडाउन कभी भी कामयाब नहीं होगा जब तक हम एक मुफलिस आदमी को, गरीब आदमी को उसके घर पे राशन नहीं पहुंचाएंगे। वो भूख से मरेगा तो बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो आपके लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध समेत दीगर बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि लॉकडाउन से मुतासरा मजदूर तबके को जिले हुकूमत की तरफ से इमदाद फराहम की जाए ताकि इस मुश्किल वक्त में गरीब अफराद मजीद फाका कशी से बच सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलायार। दुनिया भर की तरह सियालकोट में भी कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर वजीर आजम के मुआवन खुसूसी उस्मान डार और जिले इंतजामिया ने आवाम में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। इरफान गुज्जर की रिपोर्ट। कोरोना वबा के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नजर हुकूमत की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस आगाही मुहिम के जरिए मैं अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ, SOPs पर अमल करें और घरों में रहें। जिस तेजी से कोरोना वायरस मुल्क में फैल रहा है, अगर हमने रोकथाम न की तो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल भी मरीज का बोझ नहीं उठा सकेंगे। इस मूजी मर्ज का इलाज सिर्फ एहतियात है। मेरा यही पैगाम है पाकिस्तान के लोग जो मुझे सुन रहे हैं कि जिस तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है पाकिस्तान में, अगर हमने इसकी रोकथाम ना की, पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स, हमारे फ्रंट लाइनर डॉक्टर्स, नर्सेज, ये फिर इस वबा का, इन मरीजों का बोझ नहीं उठा सकेंगे। ऑलरेडी हॉस्पिटल्स पे बहुत बोझ है। सियालकोट के लोगों से मैंने कल अपील की, हम सब ने मास्क पहनना है। मुझे खुशी है, आप दिखा सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में सियालकोट के शहरी आज मास्क पहन के बाहर निकले हैं। मेरा ये पैगाम है पाकिस्तानियों को, अगर हम कोरोना की रोकथाम चाहते हैं, हमें मास्क पहनना होगा, हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, हमें SOPs पे अमल दरामद करना होगा और इंशाअल्लाह ताला इसी जिम्मेदारी के साथ हम मिलकर पूरी कौम कोरोना को शिकस्त देगी। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट जवेरिया मकबूल रंधावा ने कहा, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ने जिन अजला को एहसास करा दिया, इसमें सियालकोट भी शामिल है जहां पर कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। इस आगाही मुहिम के जरिए लोगों को मास्क पहनने की हिदायत कर रहे हैं। इसके बाद जो शहरी मास्क के बगैर घर से बाहर निकलेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि NCOC के डिसीजन के मुताबिक पाकिस्तान के 20 जो बड़े शहर है वहाँ पे लॉकडाउन का हुक्म दिया गया है और उसके तहत सियालकोट शहर में भी लॉकडाउन किया गया है। सियालकोट शहर में कोरोना की बहुत हाई प्रेवलेंस है। इसके खिलाफ हम लोगों ने जिले इंतजामिया ने, पुलिस ने और लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करते हुए एक आगाही मुहिम का आगाज किया है। आज शहर में जगह जगह मुफ्त मास्क तकसीम किए जा रहे हैं और लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि मास्क के बगैर घर से ना निकलें। इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन तक हम ये कैंपेन रन करेंगे और उसके बाद जो हजरात घर से मास्क पहने बगैर निकलेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। इस आगाही मुहिम का मकसद अवाम में शऊर बेदार करना है। घरों में रहे, महफूज रहें, अपने लिए, अपने खानदान के लिए। कैमरा टीम के साथ इरफान गुज्जर, सच न्यूज, सियालकोट। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, डेरा इस्माइल खान पहुंचे और डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल दियाई खान और मुफ्ती महमूद अस्पताल का खुसूसी दौरा किया। मुआवन खुसूसी ने अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात का मुआयना, अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि मुश्किल हालात में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ कौम के हीरो हैं और हम डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले को खराजे तहसीन पेश करते हैं। आवाम को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी आवाम को एक होकर इस वायरस का मुकाबला करना है। गैर जरूरी घरों से बाहर जाने से परहेज करें। इस वक्त हमें सिर्फ अपना नहीं बल्कि सबका सोचना चाहिए और एक जिम्मेदार कौम का सबूत देना है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। खिलाड़ियों ने देहात के मकीनों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करते हुए देहातियों को कोरोना से बचाव के लिए आगाही भी फराहम की। तारिक अली चौधरी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कौमी खिलाड़ी दही इलाकों में जाकर मकीनों को कोरोना से बचाव के लिए आगाही फराहम कर रहे हैं। पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ताहिर वहीद जट का कहना है, ये हमारे तमाम कौमी हीरो इसमें शामिल है, तो हमने अपने आप को इससे बचाना है, आफाती तदाबीर पर अमल करना है, गवर्नमेंट के SOP के मुताबिक हमने हर काम करना है। खिलाड़ी अपने तमाम अपने इलाका में जाकर, अपने गांव में जाकर अपने साथियों को भी ये बताएंगे कि
कोरोना से बचाव किस तरह करना है। खिलाड़ियों ने देहातियों में कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी तकसीम किए। तो हम गाँव जाके अपने अपने इलाकों में ये मास्क और सैनिटाइजर और लोगों को ये बताएंगे कि ये कैसे इस्तेमाल करने हैं और ये इस मूजी बरस से कैसे ये बचना है। कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों का कहना है आगाही मुहिम का मकसद देहात के बासियों को कोरोना से बचाना है। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारक अली, सच टीवी, पाकपतन। बिहारी के शहर बूरेवाला में कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस मैदान में आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही दी। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट। बुरेवाला में ट्रैफिक पुलिस ने डीपीओ बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की हदायत पर कोरोना वबा के पेश नजर अवाम में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन ने लारी अड्डा चौक में मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स, कारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोककर मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती एसओपीज पर अमल करवाते हुए बाज को वार्निंग देकर छोड़ दिया और बाज के चलान भी किए। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की इस आगाही मुहिम को खूब सराहा। आवाम को भी चाहिए कि हुकूमती एसओपीज पर अमल करे ताकि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। कोरोना जैसी मौलिक वबा से बचाने के लिए जहां मुख्तलिफ इदारे मुतहर्रिक हैं, वहीं रेस्क्यू 1122 फ्रंट लाइन पर आकर लोगों की जिंदगियां बचाने में पेश है और रेस्क्यू एहलकारों का जज्बा काबिल तहसीन है। रेस्क्यू एहलकारों के खिदमात के एतराफ में तैयार की गई राशिद अली की यह रिपोर्ट देखिए। हालात कैसे भी हों, मौका कोई भी हो, रेस्क्यू 1122 के एहलकार अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए पेश रहते हैं। हादसा के जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद देनी हो यानी अस्पताल मुंतकिल करना हो, भड़कती आग से शहरियों को निकालना मकसूद हो या पानी में डूबते इंसानों को बचाना हो, किसी कुएं में गिरे जानवर को जिंदगी बचानी हो या दरख्तों में फंसे परिंदों को आजाद करवाना हो, खतरों के ये खिलाड़ी नहायत जान फिशानी से अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। ये वो इदारा है जिसने आखिरी दम तक साथ दिया है और हमारे मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह ये एक काबिल फ़ख्र इदारा है। हम इनको सल्यूट करते हैं और इनकी काविशों को और उनकी हिम्मत को सराहते हैं। जब भी किसी मरीज़ को ये महसूस होता है कि उसे ये मर्ज़ लाहक है तो वो फौरी तौर पे ये एहलकार उसको रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है। अल्लाह ना करे अगर वो जानबर ना हो सके तो फिर उसको वहाँ से उसकी बॉडी को लेके आते हैं, तदफीन के सारे मराहल ये तय करते हैं और ये वो मरहला है जहाँ उसके लवाकिन उसका साथ छोड़ देते हैं और ये अपनी जान को ख़तरे में डाल के ये मराहल तय करते हैं और बड़ी इज़्ज़त और आबरू के साथ उसकी तदफीन करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनका ये किरदार कुलीदी है। बिलाशुबा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी अज़मत को सलाम करते हैं जो अपनी जान को दूसरों के लिए ख़तरे में डालते हैं। बिला रंग और नस्ल और मजहब की तफरीक किए बगैर अपनी जिंदगियां खिदमत इंसानियत के लिए वक्फ कर देने वाले इन मसीहाओं का जज्बा काबिल सताइश है। मुश्किल वक्त में जिंदा कौमों से ऐसे जज्बा की ही उम्मीद की जाती है। कैमरा टीम के हमरा राशिद अली, सच न्यूज, जहानिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वजीर आजम से लीगल टीम की मुलाकात। कानूनी टीम ने वजीर आजम को फैसले पर ब्रीफिंग दी। अहम खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला काजी फायज ईसा के हवाले से जो सामने आया, वजीर आजम से लीगल टीम ने मुलाकात की है और कानूनी टीम ने वजीर आजम को फैसले पर ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी, वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई फैसले के मुतालिक। जी देखिए, बिल्कुल जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो एक केस था उसमें ये फैसला दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया है उसको मुस्तरद करता है। तो वहीं उस फैसले के बाद जो है वो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से लीगल टीम की, और लीगल टीम में जो थे अटॉर्नी जनरल उनके साथ फरोग नसीम जो इस केस में हुकूमती वकील थे और उन्होंने वज़ारत कानून से इस्तीफा भी दिया था, इसीलिए उनकी मुलाकात हुई है और तफसीली ब्रीफिंग उन्होंने वज़ीर आज़म को दी है इस कानून के इस फैसले के हवाले से। और वज़ीर आज़म ने उनसे कानूनी नुकात पे कुछ राय भी ली है। उसके बाद जो है ये पूरी ब्रीफिंग देने के बाद कानूनी टीम जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस से रवाना हो गई है। जी, क्या इस हवाले से कोई हुकूमती वर्जन आने की तवक्को है? जी देखिए, अभी तक क्योंकि मंगल के रोज वफाकी काबीना का इजलास होता है और आज जुम्मे को फैसला आया है, आगे वीकेंड आ गया है, तो जराई ये बता रहे हुकूमती के अगले 2 दिनों में कोई किसी किस्म की इस हवाले से जो है गैर रस्मी मुशावरत होगी। ताम हतमी जो फैसला है वो काबीना के इजलास में किया जाएगा कि आया हुकूमत इस मामले पर अपील में जाएगी, क्योंकि जो फैसला आया है 10 रुकनी बेंच की जानिब से उसमें वाज़ेह तौर पर
ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर दोनों फरीकैन में से कोई भी फरीक अपील में जाना चाहता है तो वो अपील में जा सकता है। तो हुकूमती जो है ब्रीफिंग में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दी गई इस फैसले का ये हिस्सा भी बताया गया कि अगर हुकूमत अपील करना चाहती है तो अपील कर सकती है, ताहम हतमी फैसला जो है वफाकी काबीना के इजलास में ही किया जाएगा। आज हुकूमती वकील फरोग नसीम मीडिया से बात किए बगैर ही चले गए फैसले के फौरी बाद, तो क्या यह तवक्को की जा सकती है कि अपील का ऑप्शन जैसे मौजूद है हुकूमत अपील में चली जाए? जी देखें, ये बड़ी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल थी कि जब फैसला आया तो फरोग नसीम, शहजाद अकबर और दीगर लोग भी मौजूद थे कमरा अदालत में, और वो बाहर निकले और उन्होंने कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं की मीडिया नुमाइंदगान से, और वो नुमाइंदगान जो उनकी तरफ बड़े उनसे भी उन्होंने बातचीत नहीं की और हाथ के इशारा करते हुए वो अपनी गाड़ियों में बैठे और चले गए। जिसके बाद ज़राए ये बता रहे हैं कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल मुत्तसिल है वज़ीर आज़म ऑफिस की बिल्डिंग, जहाँ पे वो वज़ीर आज़म ऑफिस गए और उन्होंने इस फैसले पे ब्रीफ किया। ताहम अब हुकूमत का अगला क्या लाएअमल होगा, ये एक हतमी मुशावरत होगी। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी लेवल पे ये मुशावरत होगी, रहनुमा बैठेंगे और हतमी फैसला जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो काबीना को ब्रीफिंग के बाद किया जाएगा कि आया इसको जो है अपील दायर की जाएगी या नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। कारोबार करें या चीनी के लिए सारा दिन लाइन में लगें, सादिकाबाद के शहरियों ने स्टॉल्स की बजाय हर दुकान पर चीनी 70 रुपए फी किलो करने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं कि स्टॉल्स पर सारा दिन ख्वार होते हैं। आसिफ आवान की रिपोर्ट। हाई कोर्ट के हुक्म पर चीनी 70 रुपए फरोख्त किए जाने पर मुकामी शुगर मिल ने चीनी के स्टॉल तो लगा लिए, मगर हर दुकान पर चीनी 70 रुपए फरोख्त करवाने में मुकामी इंतजामिया मुकम्मल नाकाम नजर आती है। शहरी कहते हैं यहाँ सादिकाबाद शहर में 85 रुपए किलो दे रहे हैं, जबकि शुगर मिल वालों ने इधर स्टॉल लगाया है वो दे रहे हैं 70 रुपए किलो। वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, वहाँ से चीनी हमसे खरीदी नहीं जा रही। हम अपना कारोबार करें या चीनी खरीदें। अदालत के हुक्म पर मुकामी इंतजामिया अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर जहां नाकाम नजर आती है, तो वहीं लोगों को चीनी के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। 85 रुपये देंदे आ चक्का च जिथे ही आ पता दूरों आया, कल भी टिक्के खा के गया, कल पता कोई नहीं सी इत्थे आया, इन्होंने कसना सी काट ले गया, फिर मैं मुड़ गई हूँ, तो आज फिर आई हूँ। लोगों का कहना है सादिकाबाद में लाखों की आबादी के लिए चंद स्टॉल लगाना ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। 2 किलो चीनी के हसूल के लिए 30 से 35 किलोमीटर सफर करना पड़ता है, जिससे चीनी हमें 140 रुपए फी किलो पड़ती है। इंतजामिया को चाहिए तहसील भर में हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक फी किलो 70 रुपए चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहरियों का कहना है अगर चीनी माफिया के खिलाफ बर वक्त और मौसर कार्रवाई की जाती तो आज शहरी चीनी के लिए दर बदर की ठोकरें ना खाते। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। लिया के इलाके कोट सुल्तान में पेट्रोल के बाद यूटिलिटी स्टोर पर आटा चीनी भी नायाब हो गया। शहरी मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। अजमल खान की रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पीसी अवाम के लिए एक और इम्तिहान। पेट्रोल के बाद अब आटा चीनी ने किया अवाम को परेशान। यूटिलिटी स्टोर पर आटा चीनी गायब हो चुकी है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दाम चीनी खरीदने पर मजबूर। हफ्ता थी कि असीं यूटिलिटी स्टोर दा चक्कर लेंदे पे, चीनी ते आटा बिल्कुल नहीं मिलता पिया। शहर दे विच दुकानां ते काफी महंगियां चीज़ां, चीनी 80 तो 85 रुपए किलो मिलती पी है। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जिला इंतजामिया और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मुयस्सर आ सके। कैमरा टीम के साथ अजमल खान दस्ती, सच न्यूज, कोट सुल्तान लिया। बहावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। बहावलपुर की सब तहसील और शरीफ में महंगाई का जन भी बेकाबू हो गया। ऐसे खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए, जिसमें फल फ्रूट सब्जी समेत ब्रॉयलर मुर्गी की गोश्त का रेट गरीब आदमी की पहुंच से दूर चले गए। एक तो शहरी कोरोना वायरस से परेशान है, तो दूसरी जानिब महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। दुकानदारों ने खुद साख्ता इजाफा करके अवाम को दोनों हाथ से लूटने लगे और इसके अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के रेट में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि और शरीफ में महंगाई पर कंट्रोल करके अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा किया जाए। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ अजी मोहम्मद अरसाद, न्यूज और शरीफ।
राजनपुर में इंतजामिया गरम फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। जिला भर में महंगी अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को लाखों रुपए जुर्माने आयद किए गए, जबकि अवामी शिकायत के लिए फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी मुतारिफ करवा दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक तुफैल। राजनपुर में इंतजामिया की जानिब से अशिया खुर्द-ओ-नोश महंगी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। 6 माह के दौरान जिला भर में 29 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। इंतजामिया के मुताबिक गिरा फरोशी और महंगी अशिया फरोख्त करना जुर्म है, जिसके लिए दुकानदारों को भारी जुर्माने ऐद किए गए ताकि आवाम को रिलीफ पहुँचाया जा सके। हालिया दिनों में चीनी की रेट कम होने पर चीनी मार्केटों से गायब है और महंगी फरोख्त हो रही है, जिसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई है। साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुनफरद इक़दाम उठाया गया है। आवाम को सहूलत के लिए फोन नंबर और व्हाट्सएप भी मुतारिफ करवा दिए गए। नया स्टेप उठाया है वो ये उठाया है कि हमने साथ व्हाट्सएप के ऊपर अपना नंबर दिया है और नंबर देने के साथ साथ जो कीमत है वो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक ऐप है जिसके ऊपर शहरी जो है वो अपनी शिकायत जो है लगा सकते हैं उसके ऊपर, और उसका फिर जो प्रॉपर है वो हल किया जाता है। इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई को जहां आवामी हलकों ने सराहा है, वही मुकम्मल रिलीफ न मिलने पर शिकवा भी किया। मार्केट से ऐसे परचेजिंग करने आया था तो भाई पोजीशन यही है कि जिस दुकानदार के पास जाते हैं चीनी जब मांगते हैं, चीनी की डिमांड करने पे चीनी नहीं मिलती। इंतजामिया जुर्माने भी कर रही है, बाकी एक्टिविटी भी चल रही है इंतजामिया की, लेकिन सूरत हाल जो है मखदूश है। 2 से 3 दुकानें के लिए फिरा हूं चीनी लेने के लिए, एक दुकान से मुझे चीनी नहीं मिले। इंतजामिया जुर्माने भी कर रही है मगर उसके बावजूद भी अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ से कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर में जाएं, वहाँ पे फिर जाते हैं तो वहीं पे यही हाल है, लिहाजा चीनी कहीं से भी नहीं मिल रही। इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के बावजूद शुगर मिल माफिया की जानिब से बाजार में चीनी नहीं भेजी जा रही, जिसके लिए हुकूमत को छोटे दुकानदारों के साथ मिल माफिया के खिलाफ इक़दाम उठाने होंगे। मलिक तुफैल, साक्षी न्यूज, राजनपुर। साहिवाल में महकमा लाइव स्टॉक अवाम-उन्नास को सेहतमंद जानवरों का मयारी गोश्त और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की हुकूमती मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बना रहा है। बाबर सिद्दीकी की रिपोर्ट। महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ दुकानों पर छापे दर्जन भर दुकानदारों को गोश्त, दालें, चावल, सब्जी और फ्रूट महंगे दामों फरोख्त करने पर सख्त सरजनिश और हजारों रुपए जुर्माना वसूल किया। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर शफाकत अली और सुप्रीडेंट सलाटर हाउस डॉक्टर उसामा अफजाल ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। मुख्तलिफ दुकानों पर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के मयार और कीमत की चेकिंग की। महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने वाले कसाबों को मौके पर जुर्माने किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शफाकत अली का कहना था कि पंजाब के विजन के मुताबिक दपालपुर बाजार में जिला साहिवाल में हम प्राइस चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें हम उस दुकानों पे अचानक विजिट कर रहे हैं और स्पेशल परचेज भी करवाई है। तो इसमें हमने देखा है कि मोस्टली दुकानदारों ने रेट लिस्टें लगाई हुई हैं और उसके मुताबिक बेच रहे हैं। 2 दुकानदारों ने लिस्टें नहीं लगाई हुई थी, उनको 3-3 हज़ार रुपया जुर्माना किया गया है और उनको साथ ये वार्निंग भी दी गई है कि आइंदा ऐसा किया तो उनके खिलाफ FIR होगी और मजीद उनके खिलाफ सख्त एक्शन किए जाएंगे। दुकानदारों को अवाम की जेबों पर डाका मारने नहीं देंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि मुकर्रर रेट से ज्यादा कीमत पर हरगिज खरीदारी ना करें। सुप्रीडेंट सलाटर हाउस डॉक्टर उसामा अफजाल का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा लाइफ स्टॉक अवाम-उन्नास को सेहतमंद जानवरों के गोश्त की फराहमी के लिए कोशा है। उसके लिए हमारी ड्यूटी जो है एज ए सुप्रीडेंट स्लाटर हाउस सुबह सवेरे शुरू हो जाती है ताकि हम सेहतमंद जानवरों को अपनी निगरानी में ज़िबा करवा सकें। महकमा लाइफ स्टॉक अवाम को सेहत बख्श गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। बाबर सिद्दीकी, सच न्यूज, साहिवाल। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बनाया जाने वाला दादू मोरो पुल खस्ताहाली का शिकार है। सिंध और पंजाब के तरफ रोजाना सैकड़ों बड़े बड़े ट्रॉलर्स और मुसाफिर गाड़ियों का इस पुल से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं। मुरम्मती का काम न होने के बायस किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा है। शुएब तहीम की रिपोर्ट। ये है दरियाए सिंध पर कायम दादू मोरो पुल, जो कि साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने तामीर करवाया था, जिसका इफ्तिताह साल 1982 में जनरल ज़ियाउल हक ने किया था। सिंध और पंजाब के तरफ जाने के लिए सैकड़ों की तादाद में रोजाना बड़े बड़े ट्रालर और मुसाफिर गाड़ियों को इस पुल से गुजरना पड़ता है, लेकिन पुल मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल होने की वजह से इस पुल से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। पुल सारा टूटा हुआ है, गाड़ी तो बिल्कुल ऐसा गुजरता है ना, वजन वाला गाड़ी नहीं चल सकता। सारा पुल टूटा हुआ है, यहाँ पे जो गुजरते हैं हमारे को डर लगता है, सारा हिलता है पुल, यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है। अरसा दराज से बनाए जाने वाली पुल का एक मरतबा भी मरम्मत का काम नहीं किया गया, जिस वजह से पुल के मुख्तलिफ हिस्सों पर दरारें पड़ गई हैं और पुल की सड़क टूट फूट का शिकार होने के बायस मुसाफिर गाड़ियों को इस पुल से गुजरने से शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। हम ड्राइवर जब इधर से गुजरते हैं तो हमारे को खुद यकीन मानो के डर लगता है
ये जब गुजरते हैं तो ये सारा हिलने लगता है। हुकूमत को चाहिए कि इसको बनाए। अभी ट्रैफिक है और ये पुल जो है ना खस्ता हाल हो गया है भाई। सिंध में एक यही बड़ा है जो इंडस रिवर पे है। दरियाए सिंध पर कायम दादू मोरो पुल की मरम्मत के लिए हुकूमत को ठोस इकदाम उठाने चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा पेश न आ सके। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से बनाई गई दादू मोरो पुल इस वक्त मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल है, जो कि गुजरने वाली सैकड़ों गाड़ियों के लिए किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती है। शेब थईम, सच टीवी, दादू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हल्का के तारीखी शहर पक्की शाह मर्दान में तब्दीली न आ सके। जिला भर में तरक्याती काम जारी होने के बावजूद पक्की शाह मर्दान में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे शहरियों को दुश्वारी का सामना है। देखिए जाहिद अब्बास की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हल्का में तरक्याती काम तो जारी हैं, लेकिन मियांवाली के तारीखी शहर पक्की शाह मर्दान के बासियों की किस्मत तब्दील न हो सकी। पक्की शाह मर्दान की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं, जहां आम हालात में गुजरना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन बारिश के बाद यहां सड़कें नहीं तालाब नजर आते हैं। पक्की शाह मर्दान की अवाम का कहना है कि हमने इमरान खान और MP अमीनुल्लाह खान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब कराया, लेकिन हमारे ही शहर की सूरत हाल बदतर है। ना असां घरों बाहर निकल सकने, ना नमाज तक वञ सकने, ना और कोई फौतगी थी वने तो इतो पानी तो गुजर ना सकने। बराए मेहरबानी इस न पानी ने मसला हल किया वने। कोई बाहर नहीं निकल सकना, न कोई घर वाले गरीब लोग के इतो बहुत मुश्किल थी गया है। इतने न कोई पानी निकासी बाहर है, लेकिन अस हुकूमत को आखने सियासियों कोई कि कोई ये पानी न साढ़े वास्ते मसला हल किया वने। गवर्नमेंट से अपील करे ने कि सारा को बंदोबस्त कर किचा ने पानी ने न गोला निकासी ना। अस बहु मजबूर आज असा जुम्मे तो राह है को ना लगोना। अस कम का 4-5 फुट पानी खड़ा है, अस तो कितने गुजर सकने। पक्की शाह मर्दान में इलाका का बड़ा वेलफेयर हॉस्पिटल, अलमैदी हॉस्पिटल और जामिया खरीजतुल कुबरा के अलावा दीगर इदारे भी मौजूद हैं, जहां लोगों को आने जाने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आवाम का कहना है कि MP अमीनुल्लाह खान या वज़ीर-ए-आज़म के फंड से पक्की शाह मर्दान की सड़कें और दीगर तरक्याती काम जल्द अज जल्द शुरू किए जाएं। कैमरामैन याद शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज, मियांवाली। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटदू में दरबार सैयद अब्दुल वहाब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मारूफ सखी दीन पनाह का मुरम्मती काम ठेकेदार अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया, जिसके बायस दरबार पर आने वाले ज़ायरीन को परेशानी का सामना है। मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट। दरबार सैयद अब्दुल वहाब शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ सखी दीन पनाह दरबार का मुरम्मती काम फंड के बावजूद नामुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी 2 करोड़ की ग्रांट से दरबार की मुरम्मत, तंज़ीम और आराइश का काम किया जाना था। 50 लाख की लागत से ठेकेदार ने जून 2020 तक बाथरूम और चौक में बैठने के लिए कमरे तमीर करने थे। 1.5 करोड़ के फंड 2021 में खर्च होंगे। महकमा औकाफ की ज़ेर निगरानी शुरू किया गया काम ठेकेदार अधूरा छोड़कर फरार हो गया। ठेकेदार ने पुराने बाथरूम और बैठने के लिए चौक की जगह मिसमार कर दी, जबकि न्यू तमीर मुकम्मल ना हुई, अधूरा काम छोड़ दिया। ज़ायरीन का कहना था पूरे पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन को पीने का पानी समेत बाथरूम और बैठने के लिए चौक की जगह ना होने से परेशानी का सामना है। हज़रत सखी अब्दुल वहाब शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कदीमी दरबार है, जो कि इस वक्त बहुत खस्ता हाली का शिकार था, और वज़ीर आला पंजाब साहब की खसूसी कावे से 2 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान किया गया था, जो कि जो है ना काम शुरू हुआ और ठेकेदार अधूरा काम छोड़ के गायब हो गया। न कोई वाशरूम है, न कोई साइक का इंतजाम है। मेहरबानी करके हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि ठेकेदार की सरजनिश की जाए और जल्द अज जल्द काम शुरू कराया जाए। लॉकडाउन के बाद ठेकेदार वापस न आया, काम बंद हो गया। इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए दरबार का बकाया काम जल्द मुकम्मल कराए ताकि ज़ायरीन को सहूलियात फराहम हो सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इसाक, सच न्यूज, कोटअद्दू। भावनगर के इलाके मिंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज का तारीखी रेलवे स्टेशन 10 साल से बंद है। हुकूमत वक्त ने अपने 100 रोजा प्लान में भी इस ट्रैक की बहाली का वादा किया, मगर अभी तक वफा न हो सका। रिपोर्ट करेंगे अजहर नदीम। मिंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज का कदीमी रेलवे स्टेशन अरसा दराज से बंद है। लाखों रुपए का कीमती सामान भी चोरी हो चुका है। सर्दी इलाकों तक मीठा पानी पहुंचाने का वैध जरिया और मुसाफिरों को सस्ता तरीन सफर करने का हक भी छीन लिया गया है, जबकि तरीके इंसाफ के मुंतखब हुक्मरानों के 100 रोजा प्लान में भी इस रेलवे स्टेशन की बहाली का जिक्र किया गया था, जहाँ पर कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भावलपुर से दिल्ली जाते हुए कुछ देर आराम भी किया था, मगर आज तक इस ट्रैक को बहाल न किया गया। जानते हैं आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज बंद पई है, लैना लोग ही पट के ले जाते ने, बंद पिया बहुत अरसा इनू हो गया। टिकट बहुत सस्ती सी, इत्थे अड्डे ते चले जाइए बसां वाले लुटदे पे ने। हुण
ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਗਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ वजीर आजम ਨੂੰ अपील है कि इन्हें चलाया जाए ताकि असी इन्हें तो फायदा दोबारा चक सकिए। का कहना है कि रेलवे स्टेशन मंडी सादकगंज कदीमी रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये गवर्नमेंट के 100 रोजा प्लान में भी इसकी बहाली शामिल थी, लेकिन आज तक फाल ना हो सका। अवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। कसूर में लॉकडाउन के दौरान चाइल्ड लेबर में इजाफा होने लगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों ने मुशक्कत तलब काम लिया जा रहा है। चौधरी वसीम की रिपोर्ट। कहीं गाड़ियों के टायरों में हवा भरते बच्चे तो कहीं वर्कशॉप पर मुशक्कत तलब काम करते ये मासूम खेलने और पढ़ने की उम्र में कसूर और गिरदो नवा में बच्चों से मजदूरी करवाने का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन कसूर में सरेआम चाइल्ड लेबर पर इंतजामिया की खामोशी मायूस कुन है। हर साल गवर्नमेंट आती है, पॉलिसीज बनाती हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से कि इनको स्कूल में भेजा जाए, इनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, मगर कोई भी इस पे काबू नहीं पा सका। पॉलिसीज बनाने से क्या हो जाएगा जब तक हम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए किसी इदारे को काम करना पड़ेगा। ऊपर बैठे लोग तो सिर्फ पॉलिसी बना सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं, मगर उस पर अमल करने के लिए नीचे एक टीम की जरूरत है। उधर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खिलाफ सख्त कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे जो गरीब लोग हैं, एक आदमी जो है वो 15,000 पे काम कर रहा है या 12,000 पे काम कर रहा है, उसके 6 बच्चे हैं, तो वो 6 बच्चों का राशन 12,000 में पूरा नहीं कर सकता। अगर हमारा वज़ीर आज़म ये कहता है कि 2 लाख रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता, जबकि उसको तमाम चीज़ें बिला मुआवजा मिल रही हैं, तो एक गरीब आदमी 6 बच्चों के साथ, उसके माँ बाप भी अगर रहते हों, तो राशन का बिल बनाए 12,000 से ज़्यादा तो सिर्फ ड्राई राशन हो जाएगा, तो वो मजबूर है अपने बच्चों को मजदूरी करवाने पर। दुकानों पे, वर्कशॉपों पे छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर करते आपको नज़र आ रहे हैं, मगर हमारे ये हुकूमती इदारे कहाँ हैं? ये पहले भी कहीं आपको नज़र नहीं आ रहे थे। इनकी कार्रवाई या इनकी कारकर्दगी आपको सिफर नज़र आएगी। लेकिन इस वक्त जो कोरोना वायरस के बायस सिचुएशन बनी हुई है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और वालिदैन माशी मसाइल का शिकार हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं चाइल्ड लेबर के लिए। लेकिन हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है, जो हमारे इदारे हैं ये फ़ाल हों, ये काम करें। हुकूमत को चाहिए कि मुशक्कत तलब काम करने पर मजबूर बच्चों की कफालत करे और इनके वालिदैन को रोजगार की सहूलत फराहम करे। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज, कसूर। म्यूनिसिपल कमेटी लिया का अंदाज है निराला पीटर इंजन के जरिए शहर का सीवरेज का पानी नहर में डाला जाने लगा। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया शहर के वस्त में से गुजरने वाली नहर के पानी को जहर आलूद करने में म्यूनिसिपल कमेटी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। पहले गाड़ियों के जरिए शहर भर की सीवरेज का पानी नहर में डाला जाता रहा, अब तो बाकायदा सीवरेज लाइनों में पीटर के जरिए पानी निकाल कर नहर में डाला जाने लगा। जहाँ म्यूनिसिपल कमेटी अमला इस घिनौने जुर्म में दिन दिहाड़े मुलव्वस है, वहीं महकमा अनार बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। जराये के मुताबिक कुछ अर्सा कबल महकमा अनार ने म्यूनिसिपल कमेटी को मुतअद्दिद बार पानी को आलूदा करने से मना किया। बाज न आने पर म्यूनिसिपल कमेटी के आलात भी कर ले गए, मगर इंतजामिया के दबाव पर न सिर्फ आलात वापस किए, कोई कार्रवाई भी अमल में न लाई जा सकी, जिसके सबब म्यूनिसिपल कमेटी ने अब दिद्दा दिलेरी के साथ इस अमल को जारी रखा हुआ है। महकमा अनार जिले अफसरान के दबाव के बायस बेबस दिखाई देता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस बेट 23 की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें नेशनल हाईवे पर कायम तमाम गैर कानूनी चीजों को मिसमार कर दिया गया। हसन रहमानी की रिपोर्ट। नाजायज कब्जा माफिया अब हो जाएं होशियार, क्योंकि रहीम यार खान मोटरवे पुलिस है पूरी तरह तैयार। रहीम यार खान मोटरवे पुलिस बीट नंबर 23 ने डीएसपी हामिद की सरबराही में गैर कानूनी तौर पर कायम तजावीज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोटरवे पुलिस का जो बुनियादी मकसद था उसके क़याम का, वो ट्रैफिक की रवानी को बिला तातुल कायम रखना है। तो तजावज़ात जो होती हैं ये ट्रैफिक की रवानी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं और हादसात का सबब बनते हैं। मोटरवे पुलिस ने यूसुफाबाद, शेख वान, इकबालाबाद, फतेहपुर में ऑपरेशन करते हुए नेशनल हाईवे की हदूद में कायम दुकानों के आगे लगे छप्पर और दुकानों के आगे कायम स्टॉल्स को हटा दिया। मालकान, किरायादार सब इस वक्त अभी मौजूद हैं, वो मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कीमती जानें ज़ाया होती थी, हादसा ज्यादा होते थे, अब ये जो तजावुजात थे ये खत्म किए हैं। रोड पर कायम नाजायज तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई से हादसात में काफी हद तक कमी आएगी, जिससे कई कीमती जानें बच सकती हैं। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान।
لیا کی تحصیل کوٹ سلطان میں یونین کونسل ختم ہونے کے بعد فیلڈ آفس قائم تو کر دیے گئے مگر 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی بحال نہ ہو سکے. شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. صداقت خان کی رپورٹ. ہم اپنے بنیادی مسائل پیدائش اندراج، اموات اندراج اور نکاح فارم و دیگر کے حصول کے لیے 2 ماہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. تشریف لائے تھے جو یہاں سے جو ہے نا سیکرٹری صاحب سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہے نا سسٹم اس وقت بند ہوئے پڑے ہیں. جب رجسٹریشن کلرک فیلڈ آفس کوٹ سلطان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کافی عوام پریشان ہے، کہیں پیدائش اموات ان واسطے لوگ آمدن نادرہ ضرورت ہے، ان واسطے احساس پروگرام ہے، ان واسطے بھی ضرورت ہے خودگی دی نکاح نامے دی، ان واسطے لوگ کافی پریشان ہیں. سب نادرہ نے نہ کمپیوٹر سارے چلائیں اور نہ سب کچھ ووٹی پیپر دیتا گئے. تبدیلی سرکار کی تبدیلی سے سادہ لو عوام کی پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں لوگوں کی مسائل اور پریشانیاں کب کم ہوں گی. کیمرہ مین ندیم عباس کے ساتھ صداقت علی، سچ نیوز کوٹ سلطان. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. محکمہ اینٹی کرپشن گجرانوالہ نے محکمہ انہار اور محکمہ واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ اتھارٹی کی 11 کروڑ سے زائد مالیت کی اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا کر ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی. محکمہ اینٹی کرپشن گجرانوالہ کی جانب سے ریجن بھر میں کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالہ زہیب مشتاق کے ہدایت پر اینٹی کرپشن ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے محکمہ انہار گجرانوالہ کی 251 کینال اور ضلع منڈی بہاؤالدین میں محکمہ واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ اتھارٹی کی 86 کینال اراضی قبضہ مافیا سے بازیاب کروا لی گئی. ان زمینوں کی کل مالیت 11 کروڑ ہے. ملزمان نے افسران و اہلکاران کی ملی بھگت سے عرصہ دراز سے قبضہ کیا ہوا تھا. اسسٹنٹ کمشنر کبیر والا نے سرائے سدھو کے علاقے چوپرہٹا میں احساس کفالت سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. علی رضا کی رپورٹ. کمشنر کبیر والا غلام مصطفیٰ نے احساس کفالت پروگرام ادائیگی سینٹر چوپرہٹا کا دورہ کیا اور احساس کفالت پروگرام کی ادائیگیوں کا تفصیلی جائزہ لیا. احساس کفالت پروگرام سینٹر پر آنے والے مستحقین سے عملہ کے رویے بارے بھی دریافت کیا. سینٹر پر خواتین کے بیٹھنے کے لیے سایہ دار انتظامات، پینے کے لیے پانی کی وافر دستیابی، سینیٹائزر، ٹیشو کی موجودگی و دیگر ضروری انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. احساس کفالت امداد پروگرام کے تحت مالی امداد کی تقسیم کے لیے سینٹر پر تمام تر ضروری انتظامات کیے گئے ہیں اور امداد کا عمل شفاف انداز میں تیز رفتاری سے جاری ہے. اس سلسلے میں متعلقہ سٹاف کو تیز رفتار اقدامات کی ہدایات کی گئی. تحصیل انتظامیہ کے دیگر افسران اور ٹائیگر فورس کے جوانوں کو بھی متحرک رہنے کی ہدایات کی. کرونا وائرس کے ممکنہ خدشات کے باعث امداد کے لیے آئی خواتین کے مابین دائرے لگا کر مناسب فاصلہ مقرر کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رضا نقوی، سچ نیوز، سرائے سدھو. بہاڑی کی تحصیل میلسی میں ٹڈی دل کے حملوں سے نمٹنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا. محکمہ زراعت کے ملازمین نے فرضی مشقوں کے دوران اسسٹنٹ کمشنر کو بریفنگ بھی دی. محمد شریف وٹو کی رپورٹ. میلسی میں حکومتی ہدایات کے مطابق ٹڈی دل کے کنٹرول کے لیے اسسٹنٹ کمشنر میلسی انور علی کانجو کی زیر نگرانی موک ایکسرسائز کا اہتمام کیا گیا ہے. محکمہ زراعت کے ملازمین نے فرضی مشقوں میں عملی مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی اور ہینڈ موٹر مشینوں کے ذریعے سپرے کی. اس دوران محکمہ زراعت کے افسران کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر میلسی انور علی کانجو کو مکمل بریفنگ دی گئی. اے سی میلسی کا کہنا تھا کہ ملتان روڈ پر چودھری آئل مل میں کنٹرول روم بنایا گیا ہے جس میں 24 گھنٹے ملازمین موجود ہوں گے. کسی بھی علاقے سے ٹڈی دل کے جھنڈ کی اطلاعات کے آنے پر فوری امدادی کارروائیاں کی جائیں گی. انہوں نے مزید کہا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق کسان کی فصلوں کو ٹڈی دل کے حملوں سے فوری بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. صادق آباد میں ٹڈی دل کے تدارک کے لیے محکمہ زراعت اور ضلع انتظامیہ کی تربیتی مشقیں منعقد ہوئیں. فیلڈ میں کام کرنے والی ٹیموں کو مختلف اقسام کی اسپرے مشینوں کی تربیت دی گئی. صادق آباد میں ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے اور اس کے مؤثر تدارک کے لیے ضلع انتظامیہ اور محکمہ زراعت نے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا. فیلڈ میں ٹڈی دل کی تلفی کے لیے کام کرنے والی ٹیموں کو اسپرے کرنے والی مشینوں کی تربیت دی گئی. سرکل کی 7 ٹیموں نے ٹریکٹر، جیکٹو مشین، پاور مشین، نیپ سک مشین، ULV مشین کا استعمال کیا. ٹیموں کی حفاظت کے لیے مخصوص لباس بھی پہنایا گیا. ان مشقوں میں مشینوں کی فٹنگ، دوائی کی مقدار، پانی کی مقدار، چلانے کا طریقہ اور سنبھالنے کا طریقہ بتایا گیا. مشقوں میں مختلف علاقوں میں طلب کی گئی ٹڈی دل کے نمونے بھی پیش کیے گئے. رحیم یار خان کے علاقے ٹھلمزہ کے کاشتکار دیگر فصلوں سے منہ موڑ کر مختلف قسم کی سبزیاں کاشت کرنے اور ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں.
टोल हमजा के देहाती इलाकों में सब्जियां काश्त करने का रुझान बढ़ने लगा। मूजी मर्ज कोरोना से बेखौफ किसान दिगर फसलात से मुंह मोड़कर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां काश्त करने, उनकी देखभाल करने में मसरूफ। इस बारे किसानों ने बताया कि खाद, तेल, स्प्रे महंगी होने की वजह से दिगर फसलात काश्त करने की सकत नहीं रही, इसलिए जमीनें ठेके पर लेकर सब्जियां काश्त करने लगे हैं। लेकिन सब्जी मंडियों में भी मुनासिब रेट नहीं मिल रहा। महंगाई की चक्की में पिसे किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम अपने पैरों पर आप खड़े हो सकें। कैमरामैन शाहिद जावेद सियाल के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठोलमजा। लिया के इलाके फतेहपुर के काश्तकार चुकंदर की फसल की फरोख्त पर मिल्स इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी कटौती के खिलाफ सरापा एहतजाज है। चौधरी शफीक की रिपोर्ट। फतेहपुर और इसके गिरदोनवा के काश्तकार हजरात चुकंदर की फसल की फरोख्त पर मिल इंतजामिया की जानब से गैर कानूनी कटौतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। काश्तकारों का कहना है कि मिल इंतजामिया ने पहले ही हमें चुकंदर की फसल का बीज और खाद महंगी दी है और अब चुकंदर की फरोख्त पर हमारे साथ नारवा सलूक बरता जा रहा है। चुकंदर दे जेड़े जिमीदार आ उन्होंने एक तो खाद बहुत महंगी दी गई है, दूजा बीज बहुत महंगा दिता गया। तीसरी गल यह आ कि ये चुकंदर टाइम नाल लैंदे नहीं, गड्डियां साडियां खड़ियां खड़ियां चुकंदर खराब हो जाता। ये 200 मन 100 मन कटौती करते आ, जिहड़ा सानू मुनाफा मिलना चाहिए ओदी बजाय सानू नुकसान आउण लग पिया। मेहरबानी करके कोई नवी एक और मिल बनाई जाए। इको मिल आ ये सानू बहुत खराब कर रहा है। ये सारी चुकंदर की फसल का बहुत नुकसान किया इन्होंने, लिहाजा मेरे खाद बहुत महंगी दी, बीज भी बहुत महंगा दिता और लेंदे उस टाइम भी बड़ी कटौती कर रहे हैं। लई वाली मेला डेरे बनाई हुई है, लिहाजा इन्हें एक्शन लिया जाए। काश्तकारों की जानब से डिप्टी कमिश्नर लिया, कमिश्नर डीजी खान और वजीर आला पंजाब से मिल इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मंगल तक वक्फे वक्फे से बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी। श्रीनगर, बारामूला, लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। जुड़वा शहरों को अचानक काली घटाओं ने लपेट में ले लिया। बारिश की बूंदों और ठंडी हवाएं चलने से मौसम दिलफरेब हो गया। अटक में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। रिमझिम ने गर्मी से मुरझाए चेहरों पर भी खुशी बखेर दी। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, झेलम, हरिपुर, अबटाबाद में भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि मंगल तक इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, झेलम, हरिपुर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने थर में भी प्री मानसून बारिश की नवीद सुना दी है। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला रवां माह के आखिर में शुरू होगा। श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। मौसम के रंग, कहीं बारिश तो कहीं सूरज से आग की बरसात। सखर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गन्ने के जूस की मांग बढ़ गई। लोगों ने गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस की दुकानों का रुख कर लिया। औरंगजेब मलिक की रिपोर्ट। सखर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने के जूस की दुकानों का रुख कर लिया। सखर में गन्ने के जूस की मांग में इजाफा हो गया है। गर्मी में गन्ने के मशरूबात को लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी की वजह से ये जूस पी रहे हैं गन्ने का, हमारे को जो है ना गर्मी महसूस ही नहीं होती है, ठंडा लगता है, पूरा पसीना भी नहीं आता और बहुत ही अच्छा है। गर्मी फील होता है अगर गन्ने का जूस पीने, माशाल्लाह बहुत ठंडा जूस है, जहाँ भी हो जाए पीना जरूरी है। शहरियों का मजीद कहना था कि गन्ने का रस पीने से यरकान, मैदे की गर्मी और प्यास को दूर करता है और गन्ने के जूस बेचने वाले कारीगर का कहना था कि अदरक और लीमू का रस गन्ने के रस में मिलने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और लोगों को पीने के बाद प्यास भी कम लगती है। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज़, सखर। जहानत सिर्फ इंसान के पास नहीं, बेजबान जानदार भी कभी कभी इंसानी अक्ल को दंग कर देते हैं। मुतरन्नम आवाज का मालिक परिंदा बया अपने घोंसला इतनी महारत से बनाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। अब्दुल मजीद भाटी की रिपोर्ट। बेया जो एक मुसलसल बोलने वाला परिंदा है, मुख्तलिफ इलाकाई जबानों में टकोरा, सांचिड़ी, सोगरान, बीजड़ा के नाम से जाना जाता है। ये जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के अलावा इंडिया और पाकिस्तान में भी पाया जाता है।
दूसरे परिंदों की निस्बत इसकी इंफरादियत पाम, धान और घास की मदद से उल्टा सुराहीदार घोंसला है, जिसकी बनावट एक माहिर कारीगर का शाहकार दिखाई देती है, जिसे अमूमन नर 20 से 25 दिनों में तैयार करते हैं। ताहम कभी कभार अंदरूनी डेकोरेशन मादा भी करती है और मादा सिर्फ उस नर के साथ अपना जोड़ा बनाती है जिसका घोंसला सबसे मजबूत और पसंद आ जाए। इसीलिए नर मादा का दिल लुभाने के लिए दर्जनों घोंसले बनाते हैं। इनमें से नापसंदीदा घोंसले नर अधूरे छोड़ देते हैं और दोबारा नए घोंसले बनाना शुरू कर देते हैं जब तक कि मादा को घोंसला पसंद न आ जाए। ये परिंदे एक कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं जहाँ पर दर्जनों घोंसले लटके दिखाई देते हैं। वे अपने घोंसले बेशतर नहर किनारे पाम, कांटेदार कादावर दरख्तों और सरू के पत्तों पर बनाते हैं, जिनका रुख नहर के बहते पानी की तरफ होता है, ताकि किसी खतरनाक चीज से इनके बच्चे महफूज रहें, जैसा कि कव्वे, चमगादड़ और छिपकली वगैरह शामिल हैं। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SETTV.pk।